Good morning, everyone. How are you all? Hello, Sir, good sir. Good Good morning, morning, morning. sir. sir. Fine, Fine, sir. sir. And what about What you? about you? I'm also fine, thank you. I welcome you all in this learning session. In today's live class of your English subject, we have to start a new chapter. And today we would be having a paragraph explanation, the chapter explanation in Hindi. In Hindi, in your language, even we would be having the chapter explanation. Okay. So, Yes, sir. so what Yes, is the sir. chapter? The chapter number 7. The title of the chapter is The Whittington and His Cat. So, beta, in our last class already we have started the chapter and discussed the theme of this chapter. Not only this chapter, even for the next chapter, the theme of this chapter and this get set activity also has been done in our last session. Reading, reading the chapter already has been done. आप लोगों ने one by one everybody have read it. Everybody have read different paragraph. Yes, Today sir. we are going to Sir. follow explanation of these paragraphs. So one by one we have to read the paragraph and also we would be having that ki what what does the meaning and also we would be having the different meanings of some easy words for the some also we would be having uh, also we would be getting the some easy words or different words for the some difficult words. तो difficult words के आपको easy words भी मिलेंगे, another words भी मिलेंगे. Also you would be having some Hindi meaning of different words. So you all need to keep listening. आपको ध्यान से सुनते रहना है. And whenever you all are being asked, आपसे जब भी कभी भी कुछ पूछा जाता है, also you need to respond. So shall we start the chapter? Yes, sir. As I Yes, Yes, sir. sir. have guessed in our last class that this is the story Whittington and his cat. This is the story how a cat changed the master's fortune. जो एक बिल्ली है वो अपने मास्टर का फॉर्च्यून अपना उसके लक को कैसे बदल देती है. Let us read the story. A long time ago, a young orphan boy named Richard Whittington hitchhiked to London to try his fortune. A long time ago, a long time ago, बहुत समय पहले की बात है. बहुत समय पहले, a young orphan boy named Richard Whittington. A young orphan boy. But a orphan means a, a child whose parents are dead. एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है. A young orphan named Richard Whittington. एक यंग ऑर्फन बॉय है, एक अनाथ बच्चा है जिसका नाम क्या है, रिचर्ड विटिंगटन है. हिच हाइक टू लंदन टू ट्राई हिज फॉर्च्यून. वो क्या करता है, हिच हाइक टू लंदन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. हिच हाइक मीन्स ट्रेवल by asking for free of cost, travel by asking for free rides in others people vehicle. Many times what happen, कई बार हम लोग भी whenever we return from the market or whenever we return from school or going to school, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को करना नहीं चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं बैठ के आना जाना चाहिए, ऐसा करना भी नहीं कभी. लेकिन इफ वी रिकॉग्नाइज एनी पीपल, अगर हमारे अगल बगल का कोई जा रहा है तो देन ऑल्सो वी कैन आस्क देम टू लीव द, उसी रास्ते से जा रहे हैं मुझे भी मेरे पे छोड़ दीजिएगा. इन दिस वे ऑल्सो मेनी टाइम्स वी हिच हाइक्ड ड्यूरिंग आवर डे. तो होता क्या है, दिस ऑर्फन बॉय रिचर्ड हुटिंगटन हिच हाइक टू लंदन, वो लंदन जाता है इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट, एक एक करके पूछ के कि थोड़ा थोड़ा दूर, मान लो वो कई बार चेंज किया है, एक ही बार में चला गया, बट फ्री ऑफ कॉस्ट ही ट्रेवल टू लंदन. क्या करने के लिए, टू ट्राई हिज फॉर्च्यून, अपनी किस्मत देखने के लिए. किस्मत इन द सेंस वहां पे काम करने के लिए. बिकॉज जहां पे अभी वो पहले पे था वहां पे ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैविंग एनी वर्क. तो लंदन में क्या होता है उसके साथ, लेट अस रीड. He did odd jobs here and there and slept on the pavement. अब लंदन जब गया तो क्या किया उसने, he did odd jobs, वो बहुत ही odd jobs किए. odd jobs मतलब कोई भी, मतलब एक तरीके से कभी यहाँ कभी वहां, मतलब कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं किया, बहुत ही डिफरेंट वर्क्स किए, तरह तरह के वर्क किए. he did odd jobs here and there and slept on the pavement. वो कहीं ना कहीं वो इधर उधर डिफरेंट तरह के वर्क किए.
और कहाँ पे सोया? पेवमेंट. पेवमेंट इज अ फुटपाथ. पेवमेंट मीन्स क्या होता है? फुटपाथ. वन डे, एक दिन, ही वॉज स्पॉटेड बाय अ मर्चेंट. एक दिन एक व्यापारी कहीं से कोई निकल रहा था, तो एक व्यापारी ने उसको देखा. ही वॉज स्पॉटेड बाय अ मर्चेंट. उसे एक मर्चेंट के द्वारा देखा गया, जो विटिंगटन को. तो मर्चेंट ने क्या किया? उस मर्चेंट का द नेम ऑफ द मर्चेंट वाज मिस्टर फिट्जवेरन, हु गेव हिम वर्क एट हिज हाउस. उसने क्या किया? वो विटिंगटन को अपने घर पे काम दिया. कौन सा काम? हिज जॉब वाज टू हेल्प द कुक. उसका जो काम था, जो उनका कुक था, जो मर्चेंट का कुक था, उसकी हेल्प करना. इन रिटर्न, बदले में उसको क्या मिलता था? इन रिटर्न, आज सैलरी आप कह सकते हैं. इन रिटर्न ही रिसीव्ड फूड और लॉजिंग. इन रिटर्न ही रिसीव्ड फूड. इन रिटर्न उसको खाना मिल जाता था. एंड लॉजिंग मीन्स द प्लेस टू लिव, रहने के लिए स्थान. ओके. इन रिटर्न उसको वहां पे उसकी हेल्प. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. इन रिटर्न वहां पे कुक की हेल्प करने के लिए क्या क्या करता था? वो खाना मिल जाता था, प्लस रहने के लिए स्थान मिल जाता था उसको. Bimlesh, I think you are having the network issue because your picture is not coming. Actually, also I'm not getting your picture. Other students, please confirm that ki whether am I audible to you all properly or not? Yes, sir. Yes, sir. Everybody. Yes, sir. Yes, sir. Students who is having their network issue at their end, उन्हीं को प्रॉब्लम होने वाली है. Other students are getting. They have to, जिनको भी मेरी आवाज प्रॉपर ना जा रही हो, they have to change the place. और बेटा एक समय पे एक ही ऐप चलाएंगे तो आपको नेटवर्क भी चलेगा, आपका फोन भी अच्छा चलेगा. अगर आप 4 ऐप व्हाट्सएप भी खोल के बैठे हैं तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्लास. आपको ना मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई पड़ेगी, ना ही आपकी क्लास चलेगी. और ऐसा ना हो रहा हो कि एक ही वाईफाई से 2-4 मोबाइल चल रहा हो घर में. Now come to the second paragraph. Whittington enjoyed work but he had a big problem. Whittington को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. Whittington enjoyed work. जो Whittington था वो अपने काम को एंजॉय करता था, मजे से करता था, अच्छा लगता था उसको. But he had a big problem. लेकिन he had a big problem. उसके पास एक बड़ी समस्या थी. अब वो क्या समस्या थी? Let us read. There were rats in the attic where he slept. There were rats. वहां पे rats. आपकी आवाज नहीं आ रही है. Bimlesh, why you are beta? I have to remove you अगर ऐसा ही रहा. I cannot. मेरी आवाज नहीं जा रही है. Also I'm not getting your voice or your faces बेटा. चलो कोई बात नहीं, होता है. उसको क्या पता, जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी नहीं सुनाई पड़ रहा होगा. To leave that. Where I was reading. Yes, huh. There were rats in the attic where he slept. Attic in your last class, the first chapter, play वाला ऐसा कुछ था. The soldiers play on the attic, ऐसे कुछ था ना. What do you mean by attic? Attic means क्या होता है? In that chapter. Atari. Atari. नहीं कहीं पे भी इस जगह या कहीं पे. Atari. तो that means कि there were rats in the attic. Attic यानी अटारी पे रैट थे, चूहे थे. Where he slept, जो कि वहां पे सोता था. That means अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, विटिंगटन कहाँ पे सोता था? He was sleeping in the attic. क्योंकि जहाँ पे वो सोता था यानी अटारी में, वहां पे रहते थे ना, तो इसका मतलब वो सोता भी वहीं पे था. They would keep him awake most of the night. वो क्या करते थे जो रैट्स थे? They would keep him awake. वे ना इस विटिंगटन को जगाते रहते थे. Keep him awake most of the night. वो लगभग पूरी रात उसको जगाते रहते थे. He would be tired and weary the next morning. जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब वो रात भर जगता था, पूरी नींद नहीं होती थी, तो क्या होता था? He would be tired. वो थका हुआ रहता था. And very in the next morning. Very means कहते हैं सुस्त होना. जब आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आप थके हुए रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सुस्ती भी आएगी. तो यादव, मुस्कान प्रजापति, संजना पासवान, स्टार्ट योर वीडियो प्लीज. तो वहां पे वो उसको मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में वो थका हुआ और सुस्त दिखाई पड़ता था. विटिंगटन डिसाइडेड टू गेट अ कैट. ऐसे में क्या हुआ? विटिंगटन ने डिसाइड किया टू गेट अ कैट, एक बिल्ली लाने के लिए सोची. एज लक
would have it, जैसा कि उसकी किस्मत में ही था. The next day, अगले ही सुबह, he came across a girl with a cat. वो एक ऐसी लड़की के संपर्क में आया जो कि बिल्ली उसके साथ थी. He came across a girl with a cat. एक बिल्ली के साथ एक लड़की के संपर्क में आया. He bought the cat for a penny. ये penny means होता है coin, पैसे. He bought the cat for a penny. कुछ पैसे में उस कैट को उसने खरीद लिया. विटिंगटन slept soundly from then on. तब से जो विटिंगटन था वो बहुत ही अच्छी नींद में सोया. The cat became his only friend. और जो कैट था वो विटिंगटन का एकमात्र फ्रेंड बना, दोस्त बना. ठीक है. उसके बाद क्या होता है? नाउ विटिंगटन की एक आदत थी. There was a habit. Whittington was having one of the habit. What was that? He loved to daydream. Whittington also loved to daydream. जो विटिंगटन था वो daydream यानी दिन में सपने देखना उसको बहुत पसंद थे कि मैं बड़ा आदमी हो जाऊंगा, गाड़ी चलाऊंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा, अफसर बन जाऊंगा, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा तो ये करूंगा. मतलब ऐसे जैसे आप लोग करते हैं. how many love to daydream? How many love to daydream? अच्छा, कितने लोग देखते हैं? शिवान्या चौधरी देखती हैं. और चलिए ठीक है. दिन वाले सपने तो हर कोई देखते हैं. लोग सोचते नहीं है कि काश मैं हो जाऊं, ऐसा हो जाऊं, यहाँ पे चला जाऊं. चलिए ठीक है. Whittington also loved to daydream. He would think, वो क्या सोचा? He would think of faraway lands where he would go on. वो बहुत ही दूर देश की चीजों के बारे में सोचा जहां पे वो जाता है. where he would go on expeditions with his faithful cat. वो कहीं मतलब वो बहुत ही दूर देश यानी बहुत ही दूसरे देश या बहुत दूर किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाता है. with his faithful cat. अपने जो वफादार, जो उसकी बिल्ली रहती है, जो उसकी दोस्त रहती है, उसके साथ वो दूर देश पे भ्रमण के लिए यानी एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाने के लिए सोचता है. यहाँ पे एक्सपेडिशन मीन्स होता है एडवेंचरस ट्रिप यानी साहस से भरा हुआ. अगर आपको बोला जाए लेट्स से अभी अचानक कहीं पे किसी ट्रिप पे चलते हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी इजी बिकॉज इट वुड बी एडवेंचरस ट्रिप. क्योंकि आपको बोला जाए कि आपको 1 वीक आपको बाहर ही रहना है, घर नहीं रहना है, स्कूल नहीं जाना है, आपको फैजाबाद में छोड़ दिया जाए 4-5 बच्चों को या 10 मतलब 8-10 बच्चों को, मतलब किसी के गार्जियनशिप में किसी टीचर के साथ, और ये नहीं पता है हाउ द नेक्स्ट 5 days इज वुड बी गोइंग ऑन. आप कहाँ पे रहेंगे? आपको रहने के लिए एक जगह दे दिया जाए और फिर बोल दिया जाए आपको बनाना है रहने के लिए जगह. क्या आपको एक टेंट हाउस बना दिया जाए. मान लो सरयू जी के पास एक टेंट हाउस बना दिया जाए. आपका एक त्रिपाल वगैरह ले जाकर के बोला जाए कि इसे में रहेंगे हम लोग, यहीं पे कुछ खाएंगे और ऐसे ही मुझे 3 या 4 दिन काटने हैं, एक ऐसे ट्रिप पे चलते हैं. तो दैट वुड बी द एडवेंचरस. एक साहसिक होगा. कई लोग सोचेंगे अरे 3 दिन कैसे कटेंगे, क्या खाएंगे, यहाँ पे टेंट में रहेंगे, कुछ आ गया, पानी आ गई, लहरें, हवा चलेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स वुड बी कमिंग इन योर माइंड. तो साहस से भरा हुआ ट्रिप अच्छा भी लगता है, बहुत ही मजा भी आता है. तो स्कूल एक बार खुले, हो सकता है कि हम लोग भी चले कहीं पे. तो एक्सपीडिशन मींस होता है एडवेंचरस ट्रिप. तो क्या है, वो अपने उस वफादार, अपने उस एकमात्र जो दोस्त थी बिल्ली, उसके साथ वो जाने के लिए सोचता है. He imagined himself as a knight. वो अपने आप को किस तरह से इमेजिन किया? KNIGHT. नाइट मींस क्या हुआ? राजा यानी शूरवीर, योद्धा. अपने आप को एक राजा जैसे समझा. जैसे शूरवीर कह सकते हैं, योद्धा तो नहीं कह सकते, लड़ने वाला योद्धा होता है, बट एक तरीके से बहुत ही राजा महाराजा की तरह अपने आप को, शूरवीरों की तरह अपने आप को उसने इमेजिन किया. Who rid the world of rats? जो उस वर्ल्ड ऑफ रैट्स को कहीं ना कहीं छुटकारा पाना चाहता था. He imagined himself as a knight who rid the world of rats. जो कि वर्ल्ड ऑफ रैट्स को हटाना चाहता.
आपके यहाँ से मेरी आवाज बैक आ रही है. ओके, नो इशू. He saw people cheering him and king sending in voice with the treasures in gratitude. वो क्या अपने आप को क्या देखता है, वो इमेजिन करता है कि लोग उसको चीयर कर रहे हैं, यानी उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं. बेटा किसके यहाँ से आवाज आ रही है? गौरव पासवान, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए. He saw people cheering him. उसने देखा कि पीपल्स जो वहां के लोग थे, अपने आप को एक नाइट की तरह उसने महसूस मतलब इमेजिन किया. और क्या इमेजिन करता है कि वहां के लोग जो पीपल्स थे, लोग थे, वो इसको चीयर कर रहे थे, इसका प्रेज कर रहे थे. दे वर प्रेजिंग हिम. एंड किंग सेंडिंग इन वॉइस. जो किंग्स थे वो कहीं ना कहीं अपने दूतों को भेज रहे थे. एंड वॉइस, जो किंग्स थे वो अपने दूतों को, यानी उनके जो किंग्स के इनवॉइस मतलब कह सकते हैं कि जो मैसेंजर, जो मैसेज करते हैं. यानी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा ना कि राजा से जब कोई बात कहना होता है, राजा को कोई बात करना होता है किसी से या कुछ बताना होता है, तो वो स्वयं जाता है, वो तो अपने किसी न किसी पर्सन को भेजता है ना. यस सर. पहुंचाने के लिए राजा साहब अपना संदेशा पहुंचाते थे. तो जो संदेशा पहुंचाते हैं वही होते हैं दूत. वो संदेश देते हैं, मैसेज करते हैं. तो संदेश वाहक को ही इंग्लिश में मैसेंजर बोलते हैं. और मैसेंजर का एक और वर्ड आप लोग आज से सीख लीजिए, इनवॉइस. इनवॉइस मींस क्या होता है? मैसेंजर, दूत. ओके, विद द ट्रेजर एंड ग्रेटिट्यूड ही सेंड. जो किंग्स थे, जो राजा, मतलब वो ये भी सोचता है, किंग सेंडिंग इनवॉइस, जो किंग्स हैं वो दूतों को भेज रहे हैं विद ट्रेजर्स, खजानों के साथ. उनकी कहीं ना कहीं आभार में, मतलब जो कहीं ना कहीं जो चूहों को हटाने वाला एक ऐसा राजकुमार जिससे लोग बहुत खुश हो रहे हों, और राजा हैं अपने दूतों को भेज रहे हैं, दूतों को खजाने के साथ भेज रहे हैं. मतलब ये नाइट का, यानी जो विटिंगटन के किए हुए कृत्य, उनके कृत्य के आभार में, उनके रिस्पेक्ट में थैंक यू बोलने के लिए एक तरीके से. ठीक है. बट ऑल दिस वुड कम इन ए सडन. इतना सब कुछ वो इमेजिन ही कर रहा था, तब तक क्या होता है? ऑल दिस वुड कम टू अ सडन. तभी अचानक क्या, इससे क्या हुआ? ऑल दिस वुड कम टू अ सडन एंड. तभी अचानक से, इसका बहुत ही अचानक से अंत हो गया. कैसे अंत हुआ? व्हेन यू वुड हियर द कुक शाउट. जब उसने एक कुक को चिल्लाते हुए सुना. और तभी ये सब कुछ जितना भी इमेजिन कर रहा था, ये सब अचानक से खत्म हो गया जब वो कुक को चिल्लाता हुआ सुना. कुक क्या चिल्ला रहा था? विटिंगटन, आई वांट यू टू क्लीन द पॉट. विटिंगटन, मैं चाहता हूं कि तुम इसको क्लीन, पॉट्स को क्लीन करिए. वेयर आर यू, यू आइडल बॉय, तुम कहां पे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्या कर रहे हो? तब तक उसका जो सपना था, सोच रहा था, सब टूट गया. कुक उसके ऊपर चिल्ला रहा था कि ये करो, फलाना करो. तो ठीक है, क्या होता है? विटिंगटन वुड स्टॉप हिज डे ड्रीमिंग. विटिंगटन है अपना जो डे ड्रीमिंग था उसको बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है, एंड गेट बैक टू द वर्क. और अपने काम पे लग जाता है. ही बिलीव दैट, उसको विश्वास, वो विश्वास करता है. ही बिलीव दैट someday things would be different. वह विश्वास करता है, वह विश्वास जगाता है कि एक दिन जो चीजें हैं वो बदलेंगी. someday things would be different. एक दिन जो चीजें हैं वो बदलेंगी, वो अलग होंगी. ओके, यानी जो सिचुएशन है हमेशा ऐसा नहीं होगा, एक दिन कभी ना कभी तो समय बदलेगा. यस सर. अलग होगा. आफ्टर सम डेज, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. अभी तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी वर्ड की मीनिंग या कुछ ना समझ में आया हो? नो सर. Okay, come to the next paragraph. After some days, कुछ दिनों बाद, Mr. Fitzwarren's ship was ready to sail and he called for his servant. जो मर्चेंट थे, मिस्टर फिट्जवारन, उनका जो शिप था वो चलने ही वाला था, वो चलने ही वाला था. तभी क्या हुआ? ही कॉल्ड. आवाज नहीं आ रही है क्या हुआ बेटा? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी वॉइस सबको जा रही है, केवल तुम्हें नहीं जा रही है. थोड़ा सा वेट कर लिया करो, कभी कभी नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है एक आध 2 मिनट के लिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही चिल्लाना शुरू करो, ऐसा नहीं होता. ठीक है, डोंट वरी, कोई बात नहीं. चलो बेटा, जस्ट वेट, आई हैव टू कनेक्ट द चार्जर विद दिस लैपटॉप.
After some days, Mr. Fitzwarren's ship was ready to sail and he called for his servants. कुछ दिनों बाद क्या होता है, जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, मिस्टर फिशवरिन, उनका जो शिप है वो एक जल यात्रा के लिए, सेल मीन्स होता है जल यात्रा, यानी जल के रास्ते से, यानी समुद्र के रास्ते से वो कहीं ना कहीं किसी यात्रा पे शिप के थ्रू रेडी हो रहा था. मिस्टर फिशवरिन शिप वाज रेडी, जो उनका शिप था, उनकी जो जहाज थी, वो एक जल यात्रा के लिए रेडी थी. एंड ही कॉल्ड फॉर हिज सर्वेंट्स, और उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बुलाया. इट वाज द कस्टम दैट, उस समय ये कस्टम मींस एक तरीके से कह सकते हैं कि रिवाज था, एक रीति थी. इट वाज कस्टम दैट, वहां का एक रिवाज था कि एवरीबडी गेव समथिंग दे ओन्ड फॉर मेड टू बी सोल्ड टू द फॉरेन लैंड्स. क्या था, जब जो मिस्टर फिशरिन थे, जब ये जल यात्रा की किसी दूसरे लैंड जा रहे थे कहीं ना कहीं किसी व्यापार के लिए, तो क्या होता है, इट वाज द कस्टम, एक रिवाज था कि एवरीबडी हैव टू गिव समथिंग, कुछ ना कुछ लोगों को देना होता था, चाहे वो नौकर हो, चाहे उनके फैमिली मेंबर हो, कुछ भी हो, वो ऐसी चीज दे सकते थे जिसपे उनका स्वामित्व था, जो कि उनका था. ऐसा नहीं कि पापा या मम्मी का घर में उठा के दे दो, जो तुमने कमाया हो उसको बोलेंगे ओन्ड, उसी पे तुम्हारा स्वामित्व है, जो तुमने मेहनत किया हो, दैट इज ओन्ड बाय यू ऑल. तो इट वाज द कस्टम दैट, वो एक रिवाज था, दैट एवरीबडी गेव समथिंग, सब लोगों को कुछ ना कुछ देना रहता था. दे ओन्ड और मेड टू बी सोल्ड टू द फॉरेन लैंड्स, जो कि जिसका वो स्वामित्व रखते थे या उसको बेचने के लिए, फॉरेन लैंड्स में बेचने के लिए बनाए हों. द कैप्टन वुड रिटर्न विद द मनी फॉर इट, और ऐसे में क्या करते थे, जब वो देते थे तो कैप्टन जो था, उस जहाज के जो कैप्टन थे, इन रिटर्न उनको कुछ पैसे देते थे. द कैप्टन वुड रिटर्न विद द मनी फॉर इट, जो कैप्टन थे उसको जब इसको वापस करते थे तो क्या करते थे, तो पैसे, उसको कुछ पैसों के साथ इसको वापस करते थे. पुअर व्हिटिंगटन हैड नथिंग बट द कैट, यानी कहीं ना कहीं जो कैप्टन थे वो कुछ ना कुछ वापस करते थे. जब व्हिटिंगटन की बारी आई, व्हिटिंगटन भी उसी फैमिली का पार्ट था, वहीं पे रहता था, तो व्हिटिंगटन को भी कुछ ना कुछ देना था. तो व्हिटिंगटन क्या करता है, लेट अस सी. पुअर व्हिटिंगटन, बेचारा व्हिटिंगटन, हैड नथिंग बट द कैट, उसके पास कुछ भी नहीं था इस कैट के अलावा. He gave his cat to the captain, उसने क्या किया, वो अपने बिल्ली को ही कैप्टन को दे दिया. The ship sailed along, जो शिप है, जो जहाज है, वो जल यात्रा पे निकल गई और दूर तक गई. Soon, जल्दी ही. Poor Whittington had nothing but the cat, जो बेचारा Whittington था, उसके पास कैट के अलावा और कुछ भी नहीं था. He gave his cat to the captain, उसने उस कैट को ही कहीं ना कहीं कैप्टन को दे दिया. The ship sailed along, जो शिप है वो आगे बढ़ी, जल यात्रा पे निकली. Soon, जल्दी ही. The sailors, soon, जल्दी ही. The sailors were facing a menace, एक खतरा को, menace में से एक तरीके से होता है खतरा. Okay? Yes, sir. Yes, sir. यानी जल्दी ही जो ये जल यात्रा थी, एक तरह का डेंजर को फेस करने लगी, एक तरीके के खतरा को फेस करने लगी, मेनास को फेस करने लगी. वो किस तरह का फना है, किस तरीके का मेनास हो सकता है, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए आप बोट से, आप शिप से जा रहे हैं, तो अगर कहीं पानी आने लगा तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग, वो भी एक तरीके से उस शिप के लिए खतरा है. अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो भी वो एक तरीके का खतरा है. तो मेनी वेज, अब देखते हैं किस तरह का खतरा है. द शिप वॉज फुल ऑफ रैट्स, जो शिप था वो कहीं ना कहीं चूहों से भरा हुआ था. They nibble at the food and the tore the clothes. वो क्या करते हैं, निबल मीन्स होता है कुतरना, क्या होता है, कुतरना, काटना या कुतरना, काटना है, कुतरना, क्या होता है बेटा, काटना, काटना. कहाँ पे पढ़ा. They nibble at the food and tore the clothes. वे जो कपड़ों को कहीं ना कहीं फाड़ने लगे और फूड्स को कहीं ना कहीं कुतर के, यानी काटने लगे, कुतरने लगे, कुछ भी आप कह सकते हैं, कपड़ों को कुतरने लगे. The sailors were irritated, जो सेलर थे, जो सेलर्स यानी जो यात्री थे, वो कहीं ना कहीं इरिटेट होने लगे, परेशान होने लगे.
द कैप्टन सेट विटिंगटन, जो कैप्टन थे उसने क्या किया, विटिंगटन को सेट किया, क्या किया, द सेलर्स वर इरिटेटेड, इरिटेट यानी परेशान होना या जो भी है, जो सेलर्स थे यानी जो यात्री थे वो कहीं ना कहीं इरिटेट होने लगे। द कैप्टन सेट कैट आउट ऑफ इट्स रूम होपिंग दैट इट वुड किल अ फ्यू रैट्स। तभी क्या होता, जो कैप्टन थे उन्होंने जो विटिंगटन का कैट था उसको उसके रूम से वापस मतलब बाहर निकाला, और ये क्या होप करते हुए, होपिंग दैट ये आशा करते हुए कि इट वुड किल अ फ्यू कैट्स, ये इट वुड किल अ फ्यू रैट्स, ये शायद कुछ रैट्स को किल कर सके, खत्म कर सके। देयर वर फुल ऑफ रैट्स, बहुत सारे रैट्स थे बट सभी को नहीं, लेकिन कुछ को तो कम करेगा, ये आशा करते हुए उन्होंने कैट को उसके रूम से बाहर निकाला, विटिंगटन के कैट को। बट क्या हुआ, बट विटिंगटन्स कैट किल्ड ऑल द रैट्स, जो विटिंगटन का कैट था वो सभी के सभी रैट्स को किल कर गया, खत्म कर दिया। द कैप्टन एंड द सोल्जर्स वर वेरी हैप्पी, जो कैप्टन थे और उनके जो साथी थे यानी उनके साथ काम करने वाले, दे वर सो हैप्पी, वो बहुत ही खुश हुए। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी द शिप रीच द कोस्ट ऑफ बारबरी, काफी लंबी जर्नी के बाद जो शिप है वो एक कोस्ट ऑफ बारबरी मींस क्या क्या कह सकते हैं, कोस्ट ऑफ बारबरी मींस क्या होता है, एक तरीके से एक समुद्र के किनारे पे, एक समुद्र के किनारे पे तट पे जाकर के पहुंचती है, ठीक है। और इसके बाद का जो आपका पैराग्राफ है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस सर। बेटा आई एम आस्किंग, इज देयर एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल, यस और नो? No, sir. यस गौरव? No, sir. No, sir. नो किसी को कुछ पूछना है No, पूछ सकता है। नो सर। No, sir. बेटा गुड्डा, गौरव आपको कुछ पूछना है बेटा? गौरव आपका मुख बंद है। सर आफ्टर सम डे मिस्टर फ्रिज वन राइट है। बेटा आवाज आपका बहुत ही आ रहा है, शायद फिर से। आफ्टर सम डे मिस्टर फ्रिज बेटा योर सेशन इज अबाउट टू बी क्लोज। एक बार साक्षी आप पूछिए, साक्षी क्या पूछना चाह रही हैं? सर 6 चैप्टर सेंड कर दीजिए। गौरव साक्षी पूछिए बेटा जल्दी से। सर आफ्टर सम डे मिस्टर फ्रिज वन राइट है। कहाँ पे, इन विच लाइन? सर पेज 4 नंबर 4 पेज नंबर 4 व्हिच लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, कौन सा पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ? सर फर्स्ट लाइन। कहाँ पे? फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन सर डिफरेंट के नीचे। आपका पेज नंबर 4 मैंने अभी ओपन किया है, व्हिच लाइन? सर आफ्टर सम डेज मिस्टर। आफ्टर सम डेज मिस्टर, बेटा कहाँ पे है, जरा और भी बच्चे देखें कहाँ पे पूछ रहे हैं। Sir, second paragraph, first line Second में. paragraph. चलिए मैं पूरा पैराग्राफ second paragraph के first line में. faithful cat, he imagined himself as a knight who rid the world of rats. He saw people cheering him and kings sending envoys with the treasures in gratitude. But all the would come to a sudden end when he would hear the knocks out. Whittington, ये Whittington है बेटा, Whittington, I want you to clean the pots. Where are you? You ideal boy, what have you been doing? Whittington would stop his daydreaming and get back to work. He believed that someday things would be different. पहला पैराग्राफ हो गया। After Yes, some day, Mr. Fitzwarren, अच्छा ये है सेकंड पैराग्राफ, बोलिए। Mr. Fitzwarren, यस सर। after some days, Mr. Fitzwarren's ship, जो Mr. Fitzwarren's ship था, का जो जहाज था, was ready to sail, वो जल यात्रा के लिए रेडी था। बेटा साक्षी आप क्या पूछना चाह रही हैं? बेटा योर वॉइस इज नॉट क्लियरली, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग। और जो आपका इसके पहले चैप्टर की वर्ड मीनिंग है आई वुड बी सेंडिंग, ठीक है? इट
ये लगभग टाइप ही होना बाकी है। मैंने बताया था कि तेज सर आज आएंगे, तो अगर वो टाइप कर देंगे देन इट वुड बी सेंडिंग टू यू ऑल। अगर आज नहीं हो पा रहा तो कल भेजा जाएगा, बट आज या कल में वो आएंगे। आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अगर आज आएंगे देन लिखा हुआ है या तो फिर जो हैंड रिटन है वही मैं फोटो भेज दूंगा। अगर नहीं हुआ देन ऑल्सो यू कैन राइट, बट अगर वो कंप्यूटर से लिखा हुआ रहेगा, डिजिटल वे में होगा तो इट वुड बी बेटर। ठीक है, हो सकता है शाम तक आपको। Yes, sir. That's all for today. Is there any other question? Any other query? No, sir. That's all for No, today. sir. Goodbye, everyone. Sir, goodbye.